In the total, we have 24 sessions. First of all, myself, Fasiruddin, and I have been a course instructor for different institutions, and I have got this opportunity to be a part of Amazon Academy. और अब हम यहाँ पर पाइथन प्रोग्रामिंग का कोर्स है उसको इंस्टॉल करने की जो जर्नी हमारी यहाँ पर स्टार्ट होती है ठीक है अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूसिंग द कोर्स व्हाट इज इट हाउ इज इट डिजाइन और इसके अंदर कितने सेशंस हैं क्या क्लास ड्यूरेशन है फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टोटल नंबर ऑफ सेशंस व्हिच आर 24 एंड व्हाट इज आवर एजेंडा एजेंडा की अगर बात करें हमारे इस कोर्स का एजेंडा क्या है और इस डेमो क्लास का एजेंडा दैट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द कोर्स हमारा कोर्स क्या है उसके बारे में इंट्रोडक्शन देन व्हाट विल बी द कोर्स लर्निंग आउटकम्स हमारे इस कोर्स के लर्निंग आउटकम्स क्या क्या होंगे वो भी ब्रीफली डिफाइन करेंगे उनको डिस्क्राइब करेंगे एंड देन ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ आवर कोर्स मॉडल्स हमारे कोर्स के जो मॉड्यूल्स हैं उनका ब्रीफ ओवरव्यू लेंगे छोटा सा एंड द लास्ट इट एंड्स विद द Q&A सेशन ऑफ यू गाइस नाउ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट ऑफ ऑल कोर्स आउटलाइन फॉर द Python programming we have a few of the objectives first of all we have to build a strong foundation in Python programming fundamentals. सबसे पहले जो हमें Python programming के अंदर अपनी foundation create करनी है. Most of the people have this idea that whenever we are learning programming, we are actually learning how to code. Here we are going to learn the theory of how to code. Then we will apply those theories on our daily life or the different tasks we need to do. First of all, we will build a strong foundation in Python programming fundamentals, that is actually a theory, and then we'll understand and implement basic object-oriented programming OOP principles. What is OOP? We'll discuss it later in our course outline. Then we'll develop problem-solving skills using Python. So the basic, what can we say that the basic motive of a programmer is to solve a problem. Then we'll gain practical experience through hands-on projects and assignments during this course. And then after that, we'll prepare for more advanced topic of Python and then real-world development challenges. Okay, so these were some of the few objectives that we will be covering. And at the end of this course, we will assess ourselves for these objectives. That have we reached that milestone, that have achieve those objectives or not. Now coming towards the module number 1, Python foundations. So first of all, as I've told you guys earlier, that our course of Python programming has been divided in four modules. First module will be the Python foundations part 1, and then the second module will be the Python foundations, but it's a part 2. Then the third is module 3, object-oriented programming fundamentals. And then module 4, that will be the advanced topics that will cover the OOP principles. And the last but not least, we have the capstone project. Okay, coming towards our module number 1. Okay, first of all, we have first session. This is divided with the sessions. We'll introduce a topic of programming in Python. We will have an assignment, class assignment, in which we will be covering the setup of Python environment, how will we set up the Python environment on either a laptop or any device which we are using. And then in the next session, we'll be covering what are variables, data types, and operators. And further on, we'll also cover it with a quiz. Yes, a quiz, it will attest you guys that how have you covered the entire theory, how have you guys covered the entire session, or the past classes we have already learned. And then the third session, input and output and type conversion, in which we will create a simple calculator program within the class. And then after that session, we will imply the conditional statements, in which we will also create a calculator, but this time it will be a great calculator. And then after that, we will also give you guys a mini project. What that will be, it will be a number guessing game. अच्छा, यहाँ तक तो हमारे 4 सेशंस तो कंप्लीट हो गए, बट द थिंग इज कि हमारे पास मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट थिंक के कोर्स आउटलाइन हमें मिल गई है, हमें कोर्स मटेरियल मिल गया है, थ्योरी मिल गई है, अच्छा ठीक है, हमें करना क्या है, हमें ये सब
थ्योरी में तो आता है भाई, अच्छा कर लिया हमने, पहला प्रोग्राम भी बना लिया, हेलो वर्ल्ड लिख लिया, फिर उसके बाद हमने वेरिएबल्स असाइन करना सीख लिया, वेरिएबल होता क्या है ये सीख लिया, एंड देन आफ्टर दैट वी हैव आल्सो क्रिएटेड अ सिंपल कैलकुलेटर प्रोग्राम। बट नाउ हमें करना क्या है इसका? अच्छा, इसका करना क्या है, ये सीख क्यों रहे हैं हम पाइथन प्रोग्राम, इसको भी हमें आगे कवर करना है। एंड देन आफ्टर दैट कंडीशनल स्टेटमेंट we'll move towards the loops, the iterations in real meaning, and then we'll go towards the basic part of OOP, that is also called a function, in which will be in which we will define, call, and return a function, and it also ends with a quiz. अच्छा, the thing is that most of our sessions, सारे सेशंस के अंदर तो नहीं है, मोस्टली इन सेशंस के अंदर हमारे पास क्विज, क्लास असाइनमेंट, प्रोजेक्ट्स, हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स, दीज आर मैंडेटरी। ठीक है, ये मैंडेटरी क्यों है? क्योंकि प्रोग्रामिंग की जब हम बात करें, इट्स सच ए स्केल कि हम इसको जितना ज्यादा प्रैक्टिस करें, इट मेक्स अस बटर आवर स्किल्स अप। ठीक है ना, हमारी स्किल्स को उतना ज्यादा स्मूथ करती है, हमारी उस स्किल को हमें जो है, हमारी उतनी नॉलेज को वास्ट कर देती है। देन विल मूव टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मॉड्यूल 1 with the sixth session that I've told you guys. There's the functions. After that, we'll move towards Python Foundations Part 2, in which we learn different types of data. List, what is a list, and how the data is covered in tuples. In this class, we will also learn the usage with an assignment for the list manipulation exercise, in which we'll add, remove, sort different types of data, and we'll also use tuples. And after that, we have dictionaries and sets. We learned these in the session. What is a dictionary? Dictionary, what does it do, and how is it helpful in covering the most of our fundamental sets and functions? And then after that, we'll move towards the string and string methods. And how do we manipulate those string methods regarding our own criteria or our own requirements. After that, we'll also learn file handling. How can we read, write, and append the file? Okay, till the 10th session, we'll have a mini project number 2, in which here we will make a simple to-do list. So I hope you guys have already seen a to-do list. What does it do? It in which we have a few of the objectives written down, and we'll write them down just because we need to do them. We need to complete those tasks. We need to complete those objectives. We need to achieve those milestones. So a simple to-do list, we'll be making that, and it will be the part of file handling session. And then after file handling, we'll cover the error handling, then modules and packages. How do we combine the entire code in a simple module? And how do we make packages? This will sum up the 12th session and the module 2 and the fundamental part of Python. Here we'll coop up all the fundamentals we have learned before, and we'll also conduct a quiz, which conclude the entire assessment for the previous sessions. Then we'll move towards the module number 3, that is object-oriented programming. Now we'll start object-oriented programming with the fundamentals. What are the basic OOP concepts, what's introduction, what are classes, objects. We'll divide them and we'll understand them in different parts. So coming towards what is the difference between Python fundamental. All right, let's take a note here. Let's say we have Python fundamentals versus OOP. The major difference we have in Python fundamentals is that those fundamentals cover the introduction of variables, data types, data handling, error handling, and much more. So it is basically introduction is the introduction to the Python language,
and how does it work. But on the contrasting side, if we talk about OOP, OOP is basically the sum of our fundamental, and here we also cover the theories in which we make our program user-friendly, small in size, and much easier to understand. ठीक है जी. सो ये हमारा दो मोटिव्स हैं, पाइथन फंडामेंटल्स की बात करें और ऊप की बात करें. सो ऊप और फंडामेंटल्स के अंदर डिफरेंस ये है कि फंडामेंटल्स के अंदर हम लोग जो है किस तरीके से बेसिक डेटा टाइप्स, बेसिक डेटा हैंडलिंग, एरर हैंडलिंग और फाइल मैनेजमेंट, फाइल हैंडलिंग को, फाइल मेकिंग को सीखते हैं. बट ऑन द कंट्रास्टिंग साइड ऊप की अगर हम बात करें, ऊप एडवांस्ड इसीलिए है, ऊप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे पास इसके अंदर एक ऑब्जेक्टिव होता है, विच वी फॉलो एन ऑब्जेक्टिव. और फिर इस ऑब्जेक्टिव को फॉलो करते हुए, क्योंकि हमारे दिमाग में एक बात होती है कि हाँ भाई मैंने क्लाइंट का जो है प्रोग्राम उसके लिए डेवलप करना है फ्रॉम द वेरी स्क्रैच, और so उसके लिए हमें जो है कुछ चीजें जो है अपने माइंड में रखनी पड़ेंगी, जैसे फॉर सपोज इट शुड बी यूजर फ्रेंडली, जो यूजर है इसका वो उसके लिए काफी इजी हो यूज करना, और स्मॉल इन साइज हो, यानी मेरा जो प्रोग्राम बना रहा हूँ कॉम्पैक्ट हो. और अगर फॉर सपोज फॉर इंस्टेंस in a future we get a chance to for another person to debug that code, so उसके लिए वो easy हो understand करना जो हमने कोड अभी बनाया है. So, इस तरीके से हम OOP के अंदर ये डिफरेंट पिलर्स जो है OOP के कवर करते हैं. Okay, now for the 15th session where we move towards the classes and objects. What is a class, what are objects, and it will be the part 2 in which we create constructors, and class assignment in part 1 and 2, which is creating a car with attributes and methods, and then we'll also create a student class with the name, age, and grade. So after that, in the 16th session, as you guys can see here, we'll cover the principle of inheritance. What is inheritance in our daily life? We think that inheritance is taking something from a parent or from a guardian, but in the OOP, it will be another theory, but same. वही सेम कोई डिफरेंस नहीं, यानी कि उसके अंदर भी हम पेरेंट क्लासेस, उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके जो डिफरेंट डेटा टाइप्स और डिफरेंट वेरिएबल्स हैं उसको इनहेरिट करेंगे. सो छोटा छोटा सा इनका एक आइडिया ओवरव्यू दें, फिर इसको हम बाकी सेशंस के अंदर इजीली पढ़ेंगे. फिर इसके बाद आता है हमारा एक और ऊप का बेहतरीन प्रिंसिपल, यानी ऊप का जो हम क्या कह सकते हैं उसको, ओवरऑल लबे लुबाब बिल्कुल. सो वो है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म एंड मेथड ओवरराइडिंग. मेथड होता क्या है वो भी हम इंशाल्लाह फंक्शंस वाले जो हमारा सेशन उसके अंदर पढ़ेंगे, और पॉलीमॉर्फिज्म किस तरीके से उन फंक्शंस को रेप्लिकेट करने और डिफरेंट इंस्टेंसेस के ऊपर यूज करने में काम आता है. फिर इसके बाद इनकैप्सुलेशन. भाई डेटा तो हमने यूज कर ही है ना भाई. अच्छा डेटा हमने डेटा टाइप्स आ गई हैं हमारे पास, फंक्शंस आ गए, डिफरेंट चीज आ गई, हमने प्रोग्राम बना लिया, अच्छा ठीक है. बट क्या हमने वो डेटा जो उसके अंदर हम इनपुट कर रहे हैं, आउटपुट दे रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, फाइलिंग कर रहे हैं, क्या वो डेटा हमारा सेव है? क्या वो हमारा डेटा जो है एक अलग से कैप्सूल के अंदर फॉर्म हुआ है कि नहीं? क्या हमने उस डेटा को एक कवर करके रखा हुआ है कि नहीं, कि पता चला हमने पूरे जो है 1000 लाइन्स का कोड लिख दिया, तो उसके अंदर हम एक लाइन ढूंढने के लिए जो है पूरा मूव करे जा रहे हैं, डिफरेंट फंक्शंस से गो थ्रू कर रहे हैं. सो इसके लिए हमारे पास इनकैप्सुलेशन होना जरूरी है. इसको भी हम इंशाल्लाह के आगे जो है सेशंस के अंदर कवर करेंगे. देन आफ्टर दैट we'll end up with a quiz number 4, in which we'll cover the sessions 16, 17, 18 and 14, 15. जिसके अंदर हम 14, 15, 16, 17 और 18 सेशंस को इनको कवर करेंगे, और उनकी थ्योरी से हम लोग एक क्विज भी जो कंडक्ट करेंगे. After that, we have module number 4, in which
we'll cover the advanced topics, different types of classes and methods, what are abstract classes, what are methods, and then we'll also introduce the data structures to you guys, a basic introduction of what are data, what is a data, and how it is structurized in our different markets or different instances. And then after that, we'll have another mini project. It will be a simple contact book application in which what we'll do is we'll design and implement a contact book using O principles, यानी जितने भी हमने O principles अभी पढ़े थे और उनको जो है हमने अब इसमें इम्प्लीमेंट करना है सारे। उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस भी आ जाएंगी, उसके अंदर जो है हमारे पास इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन सब हमारे पास जो है प्रिंसिपल्स के अंदर यूज हम करेंगे। फिर उसके बाद अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसकी बात करें हमारे पास जो प्रोजेक्ट्स, these will be like I'll provide you the idea। हमारे पास आइडिया मैं इसको प्रोवाइड कर दूंगा क्लास के अंदर ही कि किस तरीके से जो है हमारी ये जो प्रोजेक्ट है ये बनाया जा सकता है। एंड द स्टूडेंट्स विल बी मेकिंग दोस प्रोजेक्ट्स एट देयर होम और एट देयर ईज। ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास कैपस्टोन प्रोजेक्ट जो कि हमारे स्टूडेंट्स के पोर्टफोलियो के लिए एक तरह से पिलर होगा, बेसिक पिलर होगा जो कि उनके पोर्टफोलियो को अपलिफ्ट करेगा। दैट विल बी द कैपस्टोन प्रोजेक्ट इन व्हिच वी विल डिजाइन, प्लान एंड इम्प्लीमेंट आवर आइडिया। इसके अंदर हमारे पास इसको 3 सेशन के अंदर डिवाइड करा हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो कैप्स्टोन प्रोजेक्ट होगा क्या, ये स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंड करेगा, वो उसके अंदर प्लान करेंगे और फिर डिजाइन करेंगे विद इन द सेशन। एंड देन आफ्टर दैट उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, जो स्टूडेंट्स हैं हमारे वो हमारी इस सेशन ऑनलाइन सेशन के अंदर हमारे पास जो है उसको उसकी इम्प्लीमेंटेशन स्टूडेंट्स शो कर रहे होंगे और उनका जो वर्क होगा उसको हम ओवरव्यू करेंगे। एंड इन द लास्ट session number 24, there will be the part 3 of capstone project, in which we will review the presentation of the students of those capstone projects। यानी अच्छा capstone project बना तो लिया, अब उसको प्रेजेंट तो करना। जैसे फॉर इंस्टेंस हमारे पास अगर बात करें कोई ऐप डेवलप करता है, कोई डेवलपर है, एप्लीकेशन डेवलपर, कोई एक एप्लीकेशन डेवलप करता है। अब वो किसी स्टार्टअप का सीईओ तो नहीं है, लेकिन किसी इंसान के पास जाता है, किसी बिजनेसमैन के पास जाता है, उनसे कहता है कि सर आई हैव दिस ऐप विच विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। जैसे फॉर सपोज हमारे पास अगर हम अपने कराची की बात करें, ठीक है, हमारे पास कुछ स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस नहीं है जो गवर्नमेंट की तरफ से अलॉटेड होनी चाहिए। जैसे फॉर इंस्टेंस हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन की नहीं है, मतलब इतनी कटिंग एज टेक्नोलॉजी के साथ नहीं है। फॉर इंस्टेंस एक ऐप डेवलपर होता है, वो जाता है गवर्नमेंट ऑफ सिंध के पास, वो कहता है मैंने इस प्रॉब्लम का जो हमारे पास एक प्रॉब्लम है तो उसका मैंने एक सोल्यूशन बनाया। अच्छा, वो ऐप डेवलपर यानी डेवलपर की बात कर रहा हूँ, आइदर वो किसी भी जो है लैंग्वेज को यूज करता हो, लेकिन वो डेवलपर है, उसको सबसे पहले क्या करेगा, वो सबसे पहले उस एप्लीकेशन के बनाने से पहले उसको प्लान करेगा कि मैंने करना क्या है। सो वी प्लान द कैप्स्टोन प्रोजेक्ट विद इन द क्लास। वी डिस्कस विद यू गाइस, स्टूडेंट्स के पास कौन कौन से आइडियाज हैं, कौन कौन से जो है वो जो है अपने या उनके पास पहले से कोई प्रॉब्लम हो तो उसको जो है क्लियर अप करने के लिए हमारे पास कैप्स्टोन प्रोजेक्ट बनाया जा सकता है। फिर हम लोग इसके बाद सेकंड सेशन के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। स्टूडेंट्स को इम्प्लीमेंट कर ही रहे होंगे, साथ साथ इसको जो हम लोग इसको करेक्ट या जो है इसको ओवरव्यू साथ साथ करेंगे इसी सेशन के अंदर। देन द लास्ट पार्ट, द स्टूडेंट्स करेंगे क्या भाई। अच्छा, प्रेजेंट तो कर दिया है, थिंग इज कि सॉरी डेवलप तो कर दिया है, प्लान तो कर लिया है, मतलब थिंग इज कि सबसे पहले हमारे जो पाकिस्तानी की बात की जाए ना, मोस्ट ऑफ देम आर द इंट्रोवर्ट्स। अच्छा, मैं अपनी बात करूं, मैं खुद भी एक इंट्रोवर्ट हूं, बट द थिंग इज दैट वी हैव टू प्रेजेंट व्हाट वी हैव प्रोड्यूस्ड। हमने जो एक प्रोग्राम डेवलप करा है, हमने जो एक ऐप डेवलप करी है, जब हमने जो एक सॉफ्टवेयर बना लिया है, उसको प्रेजेंट भी तो कर रहे हैं और लोगों से उसके रिव्यूज भी लेने हैं कि भाई कि क्या मेरा ये जो कोड है, क्या जो ये मेरा प्रोग्राम है, क्या जो मेरा पीस ऑफ वर्क है, ये करेक्ट है भी क्या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास सेशन नंबर 24 एंड हो जाएगा। फिर इसके बाद हम वही जो कोर्स आउटलाइन के अंदर हमने जो भी बातें पढ़ी, दैट व्हाट विल यू अचीव, विल बी बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन पाइथन प्रोग्रामिंग। इसके अंदर हमारे पास ये टॉपिक्स मौजूद कि वेरिएबल डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स, इनपुट आउटपुट करना सीख जाओगे। फिर इसके बाद टाइप कन्वर्जन, किस तरीके से किसी भी टाइप डेटा टाइप किसी भी दूसरी डेटा टाइप के अंदर कन्वर्ट किया जाता है।
और फिर उसके बाद कंडीशनल स्टेटमेंट्स किस तरीके से लगाई जाती हैं, किस तरीके से उनको यूज किया जाता है, क्या यूज केस बनता है लूप्स का, कैसे हम लोग जो फंक्शंस मेथड्स बनाते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम को डिस्कस करेंगे इन विच we'll be covering the classes, objects, attributes, methods, constructors. अल्लाह अकबर, सुनने में तो बहुत ज्यादा लग रहा है लेकिन नहीं, ये इजी है। क्यों? क्योंकि ये सब चीजें आपस में एक दूसरे के इंटरलिंक्ड है। फॉर इंस्टेंस अगर मैं बात करूँ कंडीशनल स्टेटमेंट्स की, इस तरफ आ जाते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट्स, अगर हम कंडीशनल स्टेटमेंट की बात करें तो अगर फॉर इंस्टेंस किसी स्टूडेंट ने कंडीशनल स्टेटमेंट का सेशन मिस कर दिया, ठीक है, अब वो कह रहा था भाई मुझे तो आती है ना, मैंने क्या करना है सीख के, या मैंने दोबारा पढ़ के क्या करना है। द थिंग इज कि अगर कंडीशनल स्टेटमेंट वो रह गई उसकी, ठीक है ना, सेशन, और उसके अंदर हमने कोई नई बात सीखी, नई चीज सीखी, तो आगे उसको लूप्स के अंदर, आगे उसको फंक्शंस के अंदर, आगे उसको एट्रीब्यूट्स ऑब्जेक्ट्स के अंदर, कंस्ट्रक्टर्स के अंदर, पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर, सिर्फ एक सेशन छोड़ने की वजह से उनको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम जो है फेस करनी पड़ेगी। अब होगा क्या कि जब तक एक स्टूडेंट एक क्लास के अंदर, जैसे फॉर इंस्टेंस ये भी डेमो क्लास चल रही, इसके अंदर मौजूद है, सो कर क्या सकता है, भाई यहाँ बैठे हुए तो हैं, किसी भी सेशन के अंदर बैठे हैं, यू विल नीड टू हैव योर लैपटॉप और कंप्यूटर, डेस्कटॉप जो भी आपके पास यूज कर रहे हो क्लास के मीडियम के तौर पे, लेकिन साथ में आपके पास यू नीड टू हैव अ स्टिकी नोट और अ डायरी और एनीथिंग टू राइट इट डाउन। छोटी से छोटी चीजें लेक्चर के अंदर जो समझ में आ रही है, जो नहीं समझ में आ रही, कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, कुछ भी है, यू हैव नीड टू राइट इट डाउन। यस मुजामिल, थैंक यू। नोट पैड, नोट पैड रख लो, नोट्स रख लो, कुछ भी रख लो। नोट्स लिखना जरूरी है, जब तक इंसान के जहन में वो बात थी, जब तक वो अपने मसल मेमोरी के थ्रू लिखेगा नहीं, तब तक उसकी इस मेमोरी में जो है जाएगा। ठीक है, एंड देन आफ्टर दैट प्रिंसिपल्स डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स यूजिंग पाइथन, जो हमने पहले भी पढ़ा। फिर इसके बाद हम लोग इसके अंदर कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी बिल्ड करेंगे विद द हेल्प ऑफ मिनी प्रोजेक्ट्स। और फिर इसके बाद मिनी प्रोजेक्ट्स के बाद जो अगर हम बात करें तो मिनी प्रोजेक्ट्स आपके कुछ इस तरीके के होंगे कि जैसे हमने कहा था, सिंपल टू डू लिस्ट बना रहे हैं, नंबर गेसिंग गेम है, बेसिक बैंक अकाउंट सिस्टम है, सिंपल कॉन्टैक्ट बुक एप्लीकेशन है। सो अच्छा, बनाने का फायदा क्या है इनका, इन प्रोजेक्ट्स या असाइनमेंट्स का? फर्स्ट ऑफ ऑल भाई इसकी प्रैक्टिस तो हो रही है। द थिंग इज कि जितना अच्छा हमारा डिजाइन होगा, जितना अच्छा हमारा प्रोग्राम होगा, जितना अच्छा हमारा जो है स्किलफुल जो है इसकी एप्लीकेशन होगी, हमारी जो हमारी थियोरी की क्लासेस हैं, जितना अच्छे तरीके से उनको अप्लाई करेंगे, उतना आगे जाके हमारा शाइंड अप जो है पोर्टफोलियो होगा। एंड वी कवर इट इन द अपकमिंग क्लास, कि किस तरीके से हम लोग अपने जो प्रोग्राम्स हैं, जो हमारी एप्लीकेशंस जो हम लोग बना रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर जो बना रहे हैं, जो प्रोजेक्ट्स हम बना रहे हैं, इनका गेम किस तरीके से डेवलप करें। फिर इसके बाद पाइथन के अंदर हम डेटा स्ट्रक्चर्स भी इंट्रोड्यूस करेंगे, कि किस तरीके से पाइथन के एडवांस लेवल के ऊपर जो जाके रियल वर्ल्ड डेवलपमेंट के अंदर जो चैलेंजेस आते हैं उसको जो है उसको टैकल अप कर सके। अच्छा, डेटा स्ट्रक्चर्स हमारे जो है डेटा स्ट्रक्चर्स की डेटा एनालिस्ट की क्लास जो है हमारे सर सुलेमान ने जो है कंडक्ट करी थी कल डेमो क्लास, उसको यूट्यूब पे चेकआउट जरूर करिएगा। अच्छा, ये वाली क्लास भी जो है यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर दी जाएगी। थिंग इज कि आप स्टूडेंट्स किस तरीके से इस रोड मैप को लेके चलते हो, क्योंकि देखो एक टीचर इज अ लीडर। थिंग इज द स्टूडेंट्स आर द पार्ट ऑफ दैट कॉन्वॉय हु आर एक्चुअली गेटिंग लेड बाय द टीचर। ठीक है ना, भाई टीचर सामने चल रहे हैं, स्टूडेंट्स को लेके चल रहे हैं, स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स मैटर्स फॉर द टीचर। भाई जब तक स्टूडेंट रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि किस तरीके से जो है वो स्टूडेंट को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या अगर स्टूडेंट को जो है कोई प्रॉब्लम है वो हमें किस तरीके से पता चलेगा। सो द बेसिक मीडियम वी हैव इन आवर सेशन इज दिस चैट बॉक्स जो जूम के अंदर मौजूद है, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप जो है उसमें जरूर पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसके बाद सेम दोबारा मैंने यहाँ पर इसको जो है मॉड्यूल्स पर डिवाइड करके यहाँ पर लिखा हुआ है। वो पर एडवांस टॉपिक जो है हमारे, वो भी मैंने यहाँ पर दोबारा लिख दिए हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास आपका फर्स्ट स्टेप इनटू पाइथन। हमारा जो फर्स्ट सेशन होगा कि हम उसके अंदर करेंगे, कंफर्म करेंगे पाइथन का एनवायरनमेंट, कि वो पाइथन का एनवायरनमेंट है कैसा, यानी जो हमारा आईडीई है हम कौन सा यूज करेंगे, हम उसके अंदर जो है पाइथन का कौन सा वर्जन यूज करेंगे। अच्छा, मैं
आप लोगों की बेसिक नॉलेज के लिए स्टूडेंट्स को बता दूं कि we'll be using Visual Studio. Mozambique, you have 3.12 pi. It's okay, good. कोई मसला नहीं है. Then we'll use Python 3.9 plus. ठीक है. अच्छा, 3.9 प्लस लिखने का मकसद ये है कि 3.9.11 लिख देता हूँ 911 का. सो इट विल बी दैट का. सही है. थिंग इज कि हमारे पास जो हम लोग आईडी यूज करेंगे, यानी जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट यूज करेंगे, मुझे हो जाता है, खैर कोई मसला नहीं. सो हम लोग जो है वो विजुअल स्टूडियो कोड यूज करेंगे, वीएस कोड जिसे कहा जाता है. और अब इसके बाद हम जो पाइथन का वर्जन यूज करेंगे, दैट विल बी द पाइथन 3.9 प्लस और 3.9.11. ठीक है. सो ये हमारे पास बेसिक सेटअप हो जाएगा. और इसको सेट किस तरीके से करेंगे हम लोग सेशन 1 के अंदर इंशाल्लाह कवर करेंगे, किस तरीके से पाइथन को इंस्टॉल किया जाएगा अपने डेस्कटॉप पे या आपकी जो भी मशीन वर्क मशीन है, जो जो भी है उसको किस तरीके से सेटअप करें. एंड देन विल राइट फर्स्ट हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम. हम लोग फर्स्ट अपना जो है हेलो वर्ल्ड, भाई दुनिया को हाई कर रहे हैं रोजाना, पाइथन में भी जरा हाई कर. तो खैर सबसे बेसिक प्रोग्राम है, हेलो वर्ल्ड लिखना है, प्रिंट करवाना है. फिर इसके बाद वी विल डिस्कस द वेरिएबल्स एंड बेसिक डेटा टाइप्स, किस तरीके से काम करती हैं हमारी पाइथन के अंदर, हम लोग आगे इसको कवर करेंगे. अच्छा, एक नोट मैंने बताया, ये अगर मैं दिखाऊं आप लोगों को, इस पूरे व्हाइट बोर्ड के अंदर ये सिर्फ एक अकेला स्टिकी नोट मैंने यहाँ पर एक रखा था. अच्छा, ये 2 पॉइंट्स ऐसे लिखे हैं इसके ऊपर, जो कि काफी वास्ट जो है ना, इसके ऊपर जो है हम डिस्कशन कर सकते. ये नॉलेज हमें मिल रही है, जो मैंने अचीवमेंट्स का कि भाई हम लोग ये थ्योरी पढ़ेंगे, दोनों हमारे पास कोड्स मौजूद है. प्रिंट हेलो वर्ल्ड, दिस विल बी द कोड राइट. यस मुजम्मिल, दिस कोड विल बी राइट. अच्छा, हम इस नॉलेज का करेंगे क्या? हम इस नॉलेज का जो हमारे पास रियल वर्ल्ड के अंदर, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी थी, हमारे पास रियल वर्ल्ड के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, जैसे फॉर इंस्टेंस कि हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई एप्लीकेशन नहीं है क्या. जैसे अगर हम लोग बात करें, हमारे पास सबको अपनी स्किल दिखाएंगे, बिल्कुल सबको स्किल दिखाएंगे, बट विद द हेल्प ऑफ वर्क, कि हम जो काम कर रहे हैं. ठीक है. Oh, हम लोग hello जो भी Fasi. काम करें. Hello Fasi. Okay, यस we मैम. have we have 9 minutes left. प्लीज लिमिट. So ओके, आई come जस्ट to the कवर इट अप. question answers and to describe ओके. Python importance in artificial श्योर intelligence. श्योर श्योर. ठीक है. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले जैसे सर सलीमान ने कहा कि हम लोग जो है इसके पाइथन की इंपॉर्टेंस इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कवर करते हैं. ठीक है. यहाँ पर हैव दिस पार्ट. अच्छा, मुजम्मिल, आई वांट टू आस्क यू समथिंग. द थिंग इज, व्हाट डू यू नो अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? You can write it in the chat box. Hurry up. We don't have much time. Artificial intelligence. What is it? Muzammil said is like a language created by us humans. ठीक है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर हम एआई की बात करें, बिल्कुल इट इज अ लैंग्वेज, बट द थिंग इज दैट इट इज एन एंटायर अनदर वर्ड्स कि जिसके अंदर हम लोग जो है अपनी जो हमारी ह्यूमन इंटेलिजेंस है इसको कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू मशीन इंटेलिजेंस, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. अब पाइथन किस तरीके से हमारे पास जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर काम कर रही है. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल, आई होप a few of you guys have already used Discord. Discord यूज करा होगा. द थिंग इज कि डिस्कॉर्ड के अंदर हम लोग बॉट्स बनाते हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो था, विद द हेल्प ऑफ पाइथन हम उसके अंदर जो है उनको इंटीग्रेट करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो हमारे काम करें. अच्छा, काम कोई सा भी हो सकता है. जैसे फॉर इंस्टेंस मैंने एक पहले काफी टाइम पहले, अराउंड 2 to 3 years बिफोर, मैंने एक
बॉट बनाया था डिस्कॉर्ड पे अपने सर्वर के लिए. दैट वाज द सर्वर फॉर एनालिसिस. यस मुजम्मिल, यू आर अ बिग डिस्कॉर्ड यूजर, आई कैन सी. द थिंग इज कि हमारे पास वो जो सर्वर था, वो सर्वर जो एक बिजनेस एनालिस्ट का था. और वो क्या करते थे कि जो डिफरेंट चार्ट्स होते थे, ट्रेंड एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस करते थे स्टॉक्स के, फॉरेक्स के और डिफरेंट चीजों के. अच्छा, मैंने क्या करा कि उनको चाहिए था एक बॉट जो कि उनको स्पॉट ऑन प्राइस बता दे. ठीक है. उनको ये नहीं चाहिए था कि वो डिफरेंट साइट्स पे जाएं और फिर बार बार जो है ना चार्ट्स को देखें, फॉरन लुकअप करें और सर्च करके उसको लिखें, या उसको जो स्क्रीन शॉट्स लेके कवर अप करें. उनको चाहिए था एक बॉट. मैंने क्या करा, विद द हेल्प ऑफ पाइथन आई क्रिएटेड अ बॉट विच टुक द एपीआईज, जो कि एपीआईज को कलेक्ट करके उस जो है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की, वहां से जो है डाटा एक्सट्रैक्ट करता था. डाटा एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो है उनको एक उनका जो रिकॉर्ड प्लेटफॉर्म था डिस्कॉर्ड पे, उसके ऊपर शो करता था. शो करने के साथ साथ जो है उनको जो एनालिसिस था उन उसके अंदर हेल्प करता था. कैसे कि डिफरेंट जो आपके पास उसके अंदर सिग्नल्स हैं वो प्रोवाइड करता था. सिग्नल्स लगा के, सिग्नल्स जो है कैलकुलेट करके जो उसके अंदर यूज करवाता था. अच्छा, इसके हवाले से कि पाइथन के अंदर किस तरीके से हम लोग जो है इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ये जो है बाद में सर्वर नहीं, मुजामिल सर्वर न्यू करने की जरूरत नहीं है. अच्छा, द थिंग इज कि हम लोग किस तरीके से पाइथन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर यूज करेंगे. इंशाल्लाह हम लोग अपने मिनी प्रोजेक्ट नंबर 3, दैट इज द बैंक अकाउंट सिस्टम, इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे. और फिर इसके बाद इफ यू guys have any query about the python or our course outline, you can turn your mic on and ask us, or you can use the chat box too. Do you guys have any theory, any query? किसी का कोई क्वेश्चन? महिरा, मुजम्मिल, अब्दुल राफे, all set? Okay, मुजम्मिल. ठीक. If you guys have any question regarding the course or Python, you can ask me. नहीं मुजम्मिल, इसका टोकन नहीं मिलेगा अभी. So what is next? We discuss the details on course and class schedule that will be communicated to you guys. तो आप लोग को जो इंटरेस्ट होंगे बैच में, इन स्टूडेंट्स को जो है क्लास स्केड्यूल और कोर्स की डिटेल्स जो है फॉरवर्ड कर जाएंगे. एंड रिसोर्सेज फॉर गेटिंग स्टार्टेड बिफोर सेशन नंबर 1. कुछ रिसोर्सेज हैं हमारी, जैसे लिंक्स हैं फॉर द आईडीई विजुअल स्टूडियो कोड, और जो हमारी कोर्स आउटलाइन के अंदर जो चीजें लिखी हुई, कुछ पीडीएफ जो आपको फॉरवर्ड कर दी जाएंगी बिफोर द सेशन नंबर 1 टू प्रिपेयर यू गाइस for the very first class in which we will introduce the Python program. Summing up the session, I would like to thank you for joining the demo class of MSN Academy, and I would also like to thank MSN Academy for providing this platform. I hope you guys do well, and good luck for the Python programming course. Allah Hafiz, everyone.